Students, today we will discuss about converse of Thales theorem. According to this theorem, if a line divides the two sides of a triangle, if a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then it will be parallel to the third side. See, if a triangle ABC is given here, and this line DE divides this in the ratio AD by DB equals to AE by EC. Here it is given that AD by DB is equals to AE by EC. Then we have to prove D is parallel to BC. In Thales theorem, it was given that if a line drawn parallel to one side of a triangle such that it intersects the other two sides at two distinct points, then it divides the two sides in the same ratio. But here the ratio is given, a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then this line will be parallel to the third side. We have to prove it. So here given is AD by DB equals to AE by EC, and to prove D is parallel to BC. See here proof. Let D is not parallel to BC, then there must be a line. Let D is not parallel to BC, then there must be a line passing through the point D and parallel to BC. Let that line is L dash, which, if this line is L, let that line is L dash which intersect AC at E dash. Means we draw a line through here. It is L dash which intersects AC at E dash. Let L is not parallel to BC. See here, this according to this theorem, line L divides the two sides AB and AC of this triangle in the same ratio. AD by DB equals to A by EC. ये लाइन L जो है इस ट्रेंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन होगी दिस L will be parallel to BC, means D will be parallel to BC. हमने प्रूफ में क्या लिखा कि L is not parallel to BC. मान लिया गया कि ये जो L लाइन है इट इज नॉट पैरेलल टू BC.
then there must be a line passing through point D and parallel to BC. एक लाइन डी से जरूर जाएगी जो बीसी के पैरेलल होगी एंड लेट दैट लाइन इज एल डैश. उस लाइन को हमने क्या मान लिया? एल डैश, विच इंटरसेक्ट एसी एट ई डैश, जो एसी को ई डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ सिंस एल डैश इज पैरेलल टू बीसी, therefore see this, L dash line is parallel to BC. So according to Thales theorem, if a line drawn parallel to one side of a triangle, it divides the other sides in the same ratio. So AD by DB, here AD by DB will be equals to A dash by E dash C. Write it, equation number 1, it is by BPT, basic proportionality theorem or Thales theorem. AD by DB, see here AD by DB will be equal to AE dash by E dash C. It is by basic proportionality theorem. Note it down. अगर किसी को नहीं समझ में आए, if you are unable to understand, give your reaction. वो रिएक्शन आता है उसमें you can raise your hand. हाँ जी बोलो. और एक बार कि वो जो L डैश पैरेलल बी लिखे हैं वहां पे थोड़ा एक बार समझा दीजिए. एल डैश हमने एक लाइन मान लिया. एल, अगर एल पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी ना जो डी से जाएगी और बीसी के पैरेलल होगी. तो हमने एल डैश मान लिया. एल डैश को मान लिया कि इसके पैरेलल है, बस और कुछ नहीं. और एल डैश एसी को ई डैश पे कट कर रहा है. तो यहाँ एल डैश लाइन पैरेलल टू बीसी है, तो बाई थेल्स थ्योरम इधर AD बाई DB इक्वल्स टू AE डैश बाई E डैश C होगा. उतना लिख दिया गया. आया समझ में? यस सर. और बीपीटी थ्योरम क्या होता है? पता नहीं सर. बीपीटी थ्योरम पता नहीं बेटा. बीपीटी क्या होता है मुझे नहीं पता. तुम बताओ क्या होता है? कोई है भाई इसमें जो बताएगा बीपीटी क्या होता है? सर जो थ्योरम बनाए थे उसी को थ्योरम भी कहते हैं. प्रोपोर्शनलिटी सर. थेल्सी थ्योरम को कहते हैं बीपीटी. पता नहीं बेटा, सुन लो बच्चे बता रहे हैं. बताओ भाई बच्चों बताओ. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है अनंत? बेसिक सर जो थेल्स थ्योरम होता है उसी का अनदर नेम है बीपीटी थ्योरम. उसी का नेम है सर. मतलब कैसे पता चला तुम लोगों को? सर आप बताए थे पिछली क्लास में. सर कल आप बताए थे. अच्छा, तब बताए थे. ओहो, इसका मतलब है कि ये जो पूछ रहा है ना ये सोया रहता है जब पढ़ाया जाता है तो, है ना? बिल्कुल सर. भाग गया. तो ये देखो लिसन में, ये यहां तक समझ में आया होगा आई थिंक. इसमें कोई दिक्कत है? ये जो थ्योरम हम लोग प्रूव कर रहे हैं ये समझ में यहाँ तक? नो सर. नो सर. यहाँ तक नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया? यस सर आया है. ओके ओके सर आ गया है. ओके 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 ओके. स्टॉप टॉकिंग. सी हियर नेक्स्ट. थोड़ा सा मैं स्क्रीन को उधर टर्न कर रहा हूं so that you can see the next. See here, already it is given AD by DB is equals to AE by EC. AD by DB is equals to AE upon EC. It is equation कैसे बोल रहे हैं तू? What happened? Hello. See here, ये तो हमने लिख लिया बीपीटी से और ये हमें गिवन है. देखो इन दोनों में, इन इक्वेशन 1 and 2
व्हाट इज सिमिलरिटी? इसका लेफ्ट साइड और उसका भी लेफ्ट साइड सर इक्वल है। दोनों का LHS इक्वल Yes. है। तो दोनों का जब LHS इक्वल है तो इनका RHS भी इक्वल होगा। तो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन Yes, sir. 1 and 2. See here, equation 1 and 2, AE dash by E dash C will be equals to AE by EC. ये होगा। अब क्या करना है, दोनों में 1 ऐड कर दो, एड 1 टू बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, E dash C plus 1 is equals to AE upon EC plus 1, तो what will happen? इधर बन जाएगा E dash C और ऊपर आएगा AE dash plus E dash C is equals to EC, and here we get AE plus EC. तो देखो अब फिगर को देखो, AE dash प्लस E dash C मीन्स क्या हो जाएगा? AE dash प्लस E dash C क्या बनेगा? AC. AC sir. Okay. AC. So it will be AC upon E dash C is equals to, next see here, AE plus EC. This AE plus EC. कहाँ? AE, क्यों? AC बने, AC होगा। it will AC. also AC. बा छोड़ दो भैया, ये तो भैया सामान सौरभ हमसे ना कुमार, लियो। बेटा सौरभ कुमार, why are you just see here? AC and AC will be cancelled. So there we get E dash C. Here we get हाँ, E dash C equals to EC. We are getting E dash C is equals to EC. तो E dash C, ध्यान से देखो, E dash C और EC इक्वल हो गया। तो ये कब इक्वल होगा? अब थोड़ा सा, अब यहीं पे देखो, यहीं पे थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग आपको लगाना है कि ये दोनों लेंथ हमारा मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि दिस E dash C and EC both are equal. It means कि E dash and E both the points are same point. When this E dash C and EC are equal, it means कि this point E dash and E are coincident points. So here, Yes, sir. here we will write, यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर का पोर्शन. It is the theorem and it is already in your book. Here, यहाँ के बाद see here. After this, I am going क्या हुआ? कि this shows that क्या हुआ? that so बंद करना पड़ेगा. This shows that the points E dash and E are same point. Therefore, DE is parallel to BC. Proved. अगर देखो E dash और E parallel, E dash E same point होगा, तो हमने यहाँ मान के रखा है कि L dash is parallel to BC. तो L dash और L both are coincident lines. So D is parallel to BC. In this way, the converse of this Thales theorem is proved. So note it down, students. Note it down. इसको note कर लो. और कहीं दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं. लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे. कल जो पढ़ाया गया अब आज कोई पूछेगा तो फिर तो दिक्कत है ना. सॉरी सर, दिमाग से उतर गया। अरे वो सॉरी नहीं, याद करो. सॉरी कहने से याद नहीं होगा तुम्हें. किसी, इट इज नॉट फॉर यू ओनली, इट इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि व्हाट टुडे
you are studying here, it must be in your mind tomorrow. Otherwise it is a mathematics. ये क्या है? मैथमेटिक्स है. एक के ऊपर ब्लॉक रहेगा तभी ये जाके you can solve the questions. ये theorems याद रहेगा, टेक्निक्स याद रहेगा. क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो. सर बीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. यस, वाह, वेरी गुड. फिर से एक बार रिपीट इट. बीपीटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीटी? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. And what is its another name? सर थेल्स थ्योरम. Okay, okay. सर Yes. सर राइट हैंड साइड से एक बार और बता दीजिए. Yeah. This one. See here. Note it. Yes, Once sir. again I will explain. Note it. Once again I will explain. Note it down. After completing, tell me. I will explain once again. सी हियर, ये एक बार थ्योरम ध्यान से समझ लो. ये थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है. अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, द सेम नेम मींस थ्योरम व्हिच इज गिवन बाय थेल्स एंड इट्स अनदर नेम इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. वो थ्योरम क्या था कि एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल जो लाइन खींची जाती है वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. अब उसका कन्वर्स हो गया कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ये लाइन एल है जो ए बी साइड और ए सी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा, मींस ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी. तो वी हैव टू प्रूव दैट कि दिस लाइन एल मींस डी विल बी पैरेलल टू बी सी. ये प्रूफ करना है. हमने प्रूफ में क्या ले लिया कि लेट एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी. ये एल बी सी के पैरेलल नहीं है तो डी से जरूर कोई एक लाइन जाएगी जो बीसी के पैरेलल होगी. लेट दैट लाइन इज एल डैश एंड व्हिच इंटरसेक्ट एसी एट ई डैश. अब यहाँ देखो एल डैश लाइन इज पैरेलल टू बीसी, तो अब यहाँ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डैश बाई ई डैश सी और ये इक्वल होगा ए डी बाई डी बी के, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. बट दिस इज गिवन, ये यहाँ इक्वेशन सेकेंड गिवन है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड both have left side equal. अगर इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड इक्वल है तो their राइट साइड विल आल्सो इक्वल. तो a डैश बाई ई डैश सी विल बी इक्वल टू a बाई ई सी. हम बोथ साइड में 1 ऐड कर दे रहे हैं. किसी भी इक्वेशन का रूल है, प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्वेशन इज व्हाट, कि वी कैन ऐड सेम थिंग इन बोथ साइड, वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम थिंग इन बोथ साइड. ये उसमें भी पढ़ाया गया था तुम्हें यूक्लिड्स ज्योमेट्री में. तो यहाँ हमने +1 कर दिया, यहाँ भी +1 कर दिया. एलसीएम लिए तो ये ए डैश प्लस ई डैश, इधर भी एलसीएम लिए ए प्लस ई सी. ये ए डैश और ई सी डैश को फिगर से देखो
ये क्या बनेगा, AE dash plus E dash C will become AC and AE plus EC will also become AC. तो ये both AC and AC will be cancelled. तो ये E dash C will be equal to EC. ध्यान से देखो, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेंथ इक्वल हो गया. It means कि E dash and E are same point. This shows that the points E dash and E are same point. जब ये सेम पॉइंट होंगे तो ये लाइन जब पैरेलल है तो ये लाइन भी पैरेलल होगी. सो D is parallel to BC. ओके, एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो. जो आप जो लाइन लिए हैं एल डी से कट कर रही है, तो हम लोग इस साइड से ले सकते हैं, ई से. कहाँ से? हाँ, क्यों नहीं, Why not? यस सर. सर तो वही पैरेलल होगा बीसी का. हाँ, वो जैसे इधर से हमने लिया वो इधर से आएगी, नो प्रॉब्लम. अब सी यार, कुछ यहाँ पे डिडक्शंस देखते हैं, ध्यान से देखो. If ABC is a triangle and this B is parallel to BC, if B is parallel to BC, then by BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, नंबर 1, AD by DV will be equals to AE by EC. Number 2, AB by DV is equals to AC by EC. Number 3, BD by AB is equals to EC by AC. Number 4, AD by AB will be equals to AE by AC. ये इतने सारे हो सकते हैं, मतलब जिस ऑर्डर में लेफ्ट का साइड लेंगे उसी ऑर्डर में राइट का साइड लिया जा सकता है. हाउ? ये तो हम लोग ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दिस. AD by DV इक्वल्स टू AE by EC हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है. सेकंड कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो, जो पहला प्रूव्ड है AD by DV इज इक्वल्स टू AE by EC, एड 1 इन बोथ साइड. इसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, so what will happen? LCM will be DV. So here we get AD plus DV, and here LCM will be EC. So it will be AE plus EC. So see here, AD plus DV means AB. So it will become AB by DV, and similarly AE plus EC means AC divided by EC. तो देखो ये जो रेशियो था वही रेशियो यह भी है, बस थोड़ा सा चेंज करके. मीन्स व्हाट एम आई डूइंग, यहां मैं कर रहा हूं AB बाई BD ले रहा हूं, तो इधर उसी ऑर्डर में AC बाई EC लेंगे तो भी रेशियो सही होगा. अब देखो इसका इन्वर्ट रेशियो, एक प्रोसेस होता है इन्वर्टेंडो. यहां देखो कुछ चीजें होती हैं इन्वर्टेंडो. नंबर 2 अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. एक दिन किसी ने पूछा भी था ये. वन डे वन स्टूडेंट आस्क्ड मी वाया व्हाट्सएप कि व्हाट इज दिस. सी हियर, ये कुछ चीजें हैं इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ये कुछ रेशियोज के प्रॉपर्टीज हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो. रेशियो में क्या होता है कि ये चीजें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो ये इन्वर्टेंडो मीन्स, इन्वर्ट मीन्स व्हाट? इनवर्स. इनवर्स माने क्या होता है? किसी भी चीज का उल्टा कर देना. किसी भी चीज को हम उल्टा कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इनवर्स. तो इनवर्स को ही रेशियो में अगर ये अप्लाई कर दिया जाए, इफ अ रेशियो इज गिवन एंड इफ वी अप्लाई दिस रूल इन्वर्टेंडो, मतलब इनवर्स कर देंगे.
तो यहाँ देखो ए बी बाई डी बी है, ए बाई ई सी है, तो इसका इन्वर्स करो। लेफ्ट को इन्वर्स करेंगे तो राइट को भी इन्वर्स करेंगे, तो इट विल बिकम डी बी बाई ए बी एंड इट विल बिकम ई सी बाई ए सी। तो ये इन्वर्टेंडो से ये रूल आ गया। बाई इन्वर्टेंडो वी आर गेटिंग दिस रूल। बात समझ गए? इन्वर्टेंडो से हमें ये रूल मालूम हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। देखो जिस रेशियो में यहाँ ए डी ले रहे हैं तो अपॉन में ए बी, तो इधर ए ई अपॉन ए सी। ये कैसे प्रूफ करोगे? मान लो ये चीजें दी हुई है, हाउ विल यू प्रूव इट? तो इसको इन्वर्ट करके एलसीएम ले लो। क्या करोगे? इसको इन्वर्ट कर लो, इन्वर्टेंडो लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? डी बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ई सी बाई ए ई। एड बोथ वन इन बोथ साइड, वन जोड़ दो यहां, तो इट विल बिकम ए बी बाई ए डी एंड इट विल बिकम ए सी बाई ए ई। अब इसको उल्टा कर दो, टेक इनवर्स रेशियो ऑफ दिस इन्वर्टेंडो यहां लगाओ, तो ये मिल जाएगा। तो ये सारे जो डिडक्शंस हैं हमारे, ये हम कर सकते हैं। बात समझ गए? देख लो इसमें कुछ यस सर। लास्ट वाला क्या लिखे हैं? ये सर फोर्थ वाला। ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। सर जो लिखे हैं ना इन्वर्टेंडो, ये सब उसके सबसे लास्ट। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये अभी बता रहा हूँ। ये सब अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले ये समझ लो। ये समझ में आ गया हो तो मिटाया जाए, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। आगे सर। हाँ, सर हो गया। कानपुर। see here, one by one, ये these are the properties of a ratio and proportion. See here, if A by B is equals to C upon D, if this ratio is given, so when we apply invertendo by first one, by invertendo, अगर invertendo लगाओगे तो what will happen? B upon A will be equals to D upon C. देखो ध्यान से, इन्वर्टेंडो में क्या हुआ? लेफ्ट को इन्वर्ट कर दिए, राइट को भी इन्वर्ट कर दिए। नंबर 2, if A by B is equals to C by D, then by alternando means this will come here and this will go there. ये क्रॉस हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर से इधर या इधर से इधर। अगर अल्टरनेंडो हम यहाँ लगा रहे हैं तो इफ वी राइट D by B, तो इट विल बिकम C by A, और A by C, then it will become B by D. ये हो सकता है, रेशियो में कोई फर्क
नहीं आएगा. देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो. रेशियो वही रहेगा. एंड द थर्ड इज इफ a by b is equals to c by d, then by componendo and dividendo. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या होगा? a प्लस बी बाई ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस खोट के उठा के लिया भाग गया. म्यूट योरसेल्फ. हु इज शाउटिंग बिहाइंड समवन? सब लोग अपने को म्यूट रखो. जब कुछ पूछना हो ना बेटा तो अनम्यूट योरसेल्फ. सी हियर. तो इफ यू अप्लाई इन्वर्टेंडो मींस बोथ रेशियो विल बी इन्वर्टेड. इफ यू अप्लाई अल्टरनेंडो तो क्रॉस यू कैन एक्सचेंज. लाइक ए के जगह डी और डी के जगह ए, या बी के जगह सी, सी के जगह बी. कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होगा कि ए प्लस दिस बी, ए माइनस बी, तो हियर सी प्लस डी बाई सी माइनस डी. ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है. रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा. अब नोट इट डाउन. नोट कर लिए सर. ओके, लेट अदर्स नो. बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं सर. हाँ, ये हो गया ना. तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका क्वेश्चन में कभी कभी यूज कर दिया जा सकता है. तुम्हारा रेशियो कहीं चेंज नहीं होगा. यू कैन चेक योर सेल्फ. अगर मान लो कोई रेशियो दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2/3 इज इक्वल टू 4/6. ये दोनों रेशियो इक्वल है. 2/3 इज इक्वल टू 4/6. बोथ द रेशियोज आर इक्वल. हाउ विल यू से कि बोथ द रेशियोज आर इक्वल? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आना चाहिए. 3 4 जा 12, 6 2 जा 12. तो ये रेशियो बराबर माना जाता है. अब कोई भी प्रॉपर्टी यहां से लगा के देखो, योर आंसर विल बी करेक्ट. अगर इन्वर्ट कर दोगे इन्वर्टेंडो तो इट विल बी 3/2 इज इक्वल टू 6/4. अगेन मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 एंड 3 4 जा 12 इक्वल है. अगर अल्टरनेंडो लगाते हो, अल्टरनेंडो माने 2 के जगह 6 ला दिए और 6 के जगह अगर 2 लेके चले गए, अगेन मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 3 4 जा 12, रेशियो इज सेम. तो इस तरह से हम कोई भी अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हो, इफ यू अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो तो क्या होगा? 3 + 2 5 अपॉन 3 - 2 1. पहले वाले में इस रेशियो में अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हो तो ये क्या बनेगा? 5/-1 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन -2. ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल है ना रेशियो. अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हो तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम इक्वल. इट मीन्स ये सारे रूल्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, चलो. अब किसी का कोई प्रॉब्लम है? अगर ये एक्सरसाइज 6.2 इफ यू हैव सॉल्व देन यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम सर. और किसी को? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर. नो. वाह. तो सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. 3 मिनट मोर. बोलते रहना ऐसे ही. 3 के बाद जो घटे ना तो बताते रहना. 3 मिनट बहुत है. क्वेश्चन नंबर 3. A figure is given 6.18. See here. Figure is given.
It is ABC, ADC, MLN. What is given here? See here. Given is LM parallel CB and LN parallel CD to prove AM by AB is equal to AN upon AD. What happened? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? यहाँ देखो, ये given है. It is given. This line is parallel to this line and this line is parallel to this line. So in proof, if we take in triangle ABC, LM parallel to BC और CB, ये लाइन जब इसके पैरेलल है और हमें AM by AB चाहिए, तो यहां से AM by MB लोगे, AM by MB AB. See here, यहां हमने लिया AM by AB, तो इन द सेम वे यहां के लेंगे AL by AC. AL by AC. It is equation number first and it is by BPT. ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से होगा. Now if angle ADC LN parallel to CD, here LN parallel to CD, तो यहाँ AN by AD जब लोगे, AN by AD, तो in right side AL upon AL by equal to AC. AL upon AC. It is by also by BPT. 1 and 2 we get. See here, from equation 1 and 2 clearly right side is equal, so left side will be equal. लिख लोगे ना? From 1. Yes, sir. यहाँ देखो right side, if AL by AC is here, AL by AC is here, तो right side equal हो गया, तो left side भी क्या होगा? Equal होगा. You can write from equation 1 and 2, it is proved. यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हो from equation 1 and 2. AM by AB is equals to AN upon AD. Proved. Mute yourself. Mute रखो ना, क्यों ऑन रखते हो? माइक को ऑन करके ना सबको डिस्टर्ब करते हैं कुछ. अरे म्यूट कर ले भाई. सी हियर, तो ये देखो, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. इस तरह के हमें क्या करना है कि हमें ऐसा ट्रायंगल सिलेक्ट करना है जिसमें लाइंस पैरेलल हो. पहले एबीसी में ये इसके पैरेलल था, जो चाहिए था एएम बाई एबी. देखो एएम बाई एबी हमने लिया, तो इधर उसी रेशियो में एएल बाई क्या ले लेंगे, एसी. सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, सो बाय थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ वी टेक एएन बाई एडी, तो अगेन हियर एएल बाई एसी. मतलब जिस रेशियो में एक तरफ का साइड लेंगे उसी रेशियो में दूसरे तरफ का. क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज आस्किंग टू यू एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव. तो इस तरह के ही सारे क्वेश्चंस हैं. ट्राई योरसेल्फ. कल फिर मिलते हैं, कल किया जाएगा इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस. ये आया समझ? ओके सर, थैंक्स. प्रॉब्लम है ये समझ नो आ गया? सर. यस सर.